नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित तृणमूल भवन में आसनसोल उत्तर ब्लॉक 1 के तृणमूल कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बैठक हुई। यहां गुरदास चटर्जी, भानु बोस, राजू अहलवालिया, उदय राय सहित तमाम टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक गण उपस्थित थे। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तृणमूल कांग्रेस तथा पार्टी के विभिन्न शाखा संगठनों के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिनको भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाएंगे और पार्टी को और मजबूत करने में अपना सहयोग देंगे। কালকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের যে অফিস সেখান থেকে একটা পশ্চিম বর্ধমানে কে ব্লক সভাপতি হবে, কে সহ সভাপতি হবে, কে যুব সভাপতি হবে, কে আইনজীবী সভাপতি হবে, আইনজীবী কে মাদারের প্রেসিডেন্ট হবে, সমস্ত কালকে লিস্ট বার হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে যে লিস্ট পৌঁছেছে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে মাদারের আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়েছে। সহসভাপতি হিসাবে আপনারা জানেন দীর্ঘদিন আমাদের ভানু বোস অর্থাৎ অশোক বোস দীর্ঘদিন যুব সভাপতি ছিলেন। ওনার যেহেতু বয়স 40 পেরিয়ে গেলে আমাদের এখন যুবতে আর থাকা যায় না, ওনার বয়স যেহেতু 40 পেরিয়ে গেছে, ওনাকে মায়াদারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং যুব প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের পিন্টু কর্মকার ওকে গ্রহণ করা হয়েছে। আইনজীবী থেকে প্রেসিডেন্ট রাজু আলিয়া হয়েছে আর যুব ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে আমাদের উদয়। তো আরও মাদারের যারা আসন তপনদাও আছেন, তপন ব্যানার্জি উনিও আমাদের সঙ্গে সহসভাপতি আছেন। মহিলার উনি বোধহয় নেই গো, সম্পাদা উনি হয়েছেন। আমরা এই ব্লক ওয়ানের একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলেমিশে সুষ্ঠুভাবে, যে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আমরা সুষ্ঠুভাবে প্রতিটা প্রোগ্রাম পালন করে থাকি, আপনারা জানেন। এবং আমরা যে সিস্টেমে চলি, তৃণমূল কংগ্রেসের যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম অনুযায়ী আমরা কাজ করি। তো সেই জন্য আবার সবাইকে যারা নবনির্বাচিত হয়ে এলেন ধন্যবাদ জানাই এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পার্টিকে কিভাবে আগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চিন্তা ভাবনায় সবসময় আমাদের যেমন থাকে, আশা করি আপনারাও রাখবেন। পার্টির কোনো জায়গায় ক্ষতি করে বা পার্টির লোকসান করে কেউ যদি ভাবে যে আমাকে পার্টির লোকসান করে আমি এই করব, তাদেরকে কিন্তু আমাদের দলের তরফ থেকে ক্ষমা করা হয়। তো সেই জন্য আমরা যেমন বুক উঁচিয়ে বলতে পারি যে আমাদের কোনো সিডি ইডি যেই আসুক আমাদের ওইসবের ভয় নেই, কারণ আমরা না ফ্ল্যাট করেছি, না বাড়ি করেছি, না গাড়ি করেছি, সেই জন্য আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা মাথা উঁচু করে যাই, মাথা উঁচু করে ঢুকি, মাথা উঁচু করে ঘর থেকে বেরোই। তাকে আমাদের এই ইডি সিডি এসব ভয় চমকানো ভমকানোতে আমরা ডরি না। তাই জন্যে আজকের দিনে সবাই মিলে শপথ করুন, এক সুন্দর তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে উপহার দেবো আসানসোলের কথা বলে সবাইকে অভিनंदन জানিয়ে। हाल ही में टीएमसी द्वारा आसनसोल लोकसभा केंद्र के विभिन्न ब्लॉकों में संगठन में बड़ी तब्दीलियां की गई। न सिर्फ टीएमसी बल्कि टीएमसी से जुड़े सभी शाखा संगठनों तथा श्रमिक संगठन INTTUC में भी कई तब्दीलियां की गई है।
आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 में राजू अहलवालिया को INTTUC अध्यक्ष बनाया गया है। इसे लेकर INTTUC समर्थकों में भारी खुशी देखी जा रही है। आज बड़ी संख्या में INTTUC समर्थकों ने आसनसोल बस स्टैंड में राजू अहलवालिया को बधाई दी और उनका मुंह मीठा किया। इस मौके पर समर्थकों ने एक दूसरे को हरे रंग से रंग दिया। समर्थकों द्वारा फूलों का हार पहनाकर और गुलदस्ते देकर राजू अहलवालिया को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समर्थकों ने पटाखे भी फोड़े। सबথেকে প্রথম মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। আমাদের আসানসোলের ভূমিপুত্র মাননীয় মলয় ঘটককে ধন্যবাদ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় INTTUC জেলা সভাপতিকে ধন্যবাদ। আর সবথেকে বেশি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের युवा তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা INTTUC সভাপতি মাননীয় অভিজিৎ ঘটক মহাশয়কে। আজ অভিজিৎ ঘটক মহাশয় যেদিন থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার INTTUC সভাপতি হয়েছেন, শ্রমিকের মধ্যে খুশির জোয়ার রয়েছে। শ্রমিকদের যা লড়াই আছে, আন্দোলন আছে, উনি সবসময় আমাদের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আজকে আমাকে 1 নম্বর ব্লক প্রেসিডেন্ট করার জন্যে আমাদের তৃণমূল নেত্রী, আমাদের দাদা মলয়দা, আমাদের ঋতুব্রত দা, আমাদের অভিজিৎ ঘটক এবং तमाम যতগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং নেতৃত্ব আছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি আমার উপর বিশ্বাস দিয়েছেন আর আমাকে 1 নম্বর ব্লক INTTUC সভাপতি করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। नंबर वार्ड अंतर्गत राजा बांध इलाके में कुछ महिलाओं ने कल रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के सामने अपनी परेशानियों को बयां किया। इन महिलाओं का कहना था कि उन्होंने यहाँ किसी शाहिद नामक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। दरअसल यह जमीन एक तालाब है। इन महिलाओं ने कहा कि शाहिद ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उस तालाब की भराई कर उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे वहां पर घर निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब स्थानीय पुलिस प्रशासन पार्षद कह रहे हैं कि तालाब की भराई नहीं की जा सकती। इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाकर शाहिद से यह जमीन खरीदी थी। क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको यह पता नहीं था कि तालाब की भराई नहीं की जा सकती। इन महिलाओं का कहना है कि अब वह कहाँ जाएंगे। वहीं शाहिद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति उनको तालाब बेचकर झारखंड चला गया है। इस मुद्दे को लेकर महिलाओं ने तापस बनर्जी से गुहार लगाई थी। इन महिलाओं ने कहा कि शाहिद से तालाब खरीदने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो TMC के सक्रिय कर्मी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की थी। चुनाव आते हैं, रैलियां होती हैं, उसमें भी शामिल होते हैं। इन महिलाओं का कहना है कि क्या पार्टी सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। जब इन लोगों को पार्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आती। हालांकि इस बारे में जब तापस बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में तालाब की भराई नहीं की जा सकती है। वहीं पार्टी द्वारा TMC कार्यकर्ताओं के साथ खड़े न होने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन किसी के अनैतिक कार्य की जिम्मेदारी पार्टी नहीं लेगी। वहीं निवासी नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा ने इस बात की तसल्ली दी है कि उन्होंने यहाँ के पार्षद हैं और उनके वार्ड में अगर कोई अवैध कार्य होता है तो उनको जवाबदेही करनी पड़ती है। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने वार्ड में कोई अवैध काम नहीं होने देंगे। मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि जब इन महिलाओं ने तापस बनर्जी से बात की थी तो तापस बनर्जी ने भी उनको यह कहा और उनसे पूछा कि जब वह शाहिद से वह तालाब खरीद रहे थे तब उनको क्या पता नहीं था कि वह तालाब था या पानी है और तालाब की भराई नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ता होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी गलत काम करे। उसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि TMC समर्थक हैं, दरअसल वह अंदर ही अंदर माकपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने अपने वार्ड में किसी भी अवैध कार्य को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। अपने वार्ड में कोई भी अवैध काम होने नहीं देंगे जिससे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम बदनाम हो। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी जब आए तो आप लोग क्या मैंने दावी किए हैं?
दावे यही किया है जो गरीब आदमी लोग यहाँ जगह किने से। कहाँ पे जगह? पहाड़ का ऊपर जगह किना। अब हम लोग का आ रहा है हम लोग के पास जो देखो हम लोग जगह किना है, मेरे को बोली साहब भर के देंगे। अभी काउंसिलर नेता पार्टी सब बोल रही तालाब है, तो गरीब आदमी लोग कहाँ जगह जो 10-20 करके जमा करके लोग जगह तो खरीदी से उसका क्या फैसला होना चाहिए? गरीब आदमी को गरीब आदमी का तो उतना पैसा नहीं है, जो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि नोट खरीद लेगा। जगह तो समझ में नहीं आ रहा, कौन तो तालाब है, कौन तो पुकुर है, कौन तो पहाड़ है। गरीब आदमी को लालच दी 10-5 जैसी करके उसका जमीन बेचा कौन? जमीन शहीद बेची तो वो बोली था भर के हम तेरे को देंगे। तो अभी का वो बेच के झाड़ के निकल। विधायक से आप लोगों को क्या बात हुआ? विधायक के लोग कई लोग बोल रहा, सब रोक रहा काम, जब लगा रहा ईंटा वालू गिरा रहा गरीब आदमी आके पुलिस भेज। क्या बातचीत हुई? अभी बोला जो पुकुर है तो पुकुर तो पुकुर तो बात करके पहाड़ का नाप के गरीब आदमी को दे दे जगह बना के। गरीब आदमी ने पैसा भी फंसाई से गरीब आदमी जाएगा कहाँ? वो तो कोई फिर कोई आसरा देके ना कोई चीज आदमी तैयारी होके साथ ना ले है। अभी मेरे लोग का पास आ रहा है, जब हम लोग का फैसला तुम लोग करो। अब वोट देने घड़ी तुम लोग का मुंह देख के वोट दिया, और किसी को देख के वोट नहीं दिया है। साला लॉकडाउन होगा तो लड़का लोग खाना खिलाएगा, पानी का व्यवस्था होगा तो लड़का लोग सब करेगा। तो खाली वोट लेने के लिए जीतने के लिए पार्टी पॉलिसी है, मोहल्ला में काम करने के लिए नहीं। काउंसिलर को आप लोग जनाए ये बात? हाँ जनाया। क्या बोले वो बोला पुकुर है, तालाब है, जो लीज है वो अपना फंसेगा। तो आप लोगों का क्या दाबी है? हम लोग का हक दिलाएंगे गरीब को, जो पैसा दिए जाएंगे। तालाब जो रहेगा पहाड़ रहेगा, तालाब तक तो बड़ा नहीं है। क्या नाम हुआ? सायरा खान। जगह का नाम? राजावन बाम घोष। 89 नंबर के कुछ स्थानीय प्रॉब्लम बता रही है, विरोध कर रही थी। इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी जगह के काउंसिलर है इस वार्ड का। वो लोग तालाब का खिलाफ विरोध नहीं कर रही थी, तालाब भराट करके घर बनाने का डिमांड कर रही थी। मैं इस वार्ड का काउंसलर हूँ। यहाँ कौन तालाब भराट होता है, कौन वेस्ट जगह बिक्री हो रहा है, जवाबदेही मुझे ऊपर में देना पड़ता है। हमारे मियाँ साहब को देना पड़ता है, एमएलए को देना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को देना पड़ता है। सब जवाब हमको चाहता है, किसी और से मांगता नहीं। इलीगल काम आपके वार्ड में हो रहा है, उसका जवाबदेही मुझे करना पड़ता है। तो इन लोगों ने सब मिलकर जो एमएलए साहब से कहा, एमएलए साहब भी बोले, तो सब मेरा विरोधिता है। लोग सीपीएम से मिला हुआ, सीपीएम से इन लोगों का साठ गार्ड है। अगर लोग टीएमसी के होती तो ऐसा बात नहीं करता कि इलीगल तालाब भराट हो रहा, तालाब को बेचा जा रहा। वो लोग तालाब का खिलाफ आवाज़ उठाती, लेकिन फेवर में उन लोग आ रही है। ये तालाब खरीदा है, ये किया, जो इसने बेचा है, जिसने दलाली खाया है, उसके पास इन लोगों को जाना चाहिए। मैं भी जाऊंगा एज ए काउंसलर के हिसाब से कि इन लोगों को पैसा रिटर्न होना चाहिए। गरीब आदमी है, क्यों तालाब आप बेचें इन लोगों को प्लॉट बनाकर? इसमें बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी के साथ भी है और सीपीएम के साथ मिलकर काम करता है। डेकोटी टीएमसी है, लेकिन काम सीपीएम का इन लोग कर रहे हैं। तो गरीब आदमी को आप तालाब किनवा दीजिएगा और भराटी कीजिएगा, ये कहाँ का होगा? हमारा गवर्नमेंट का वो पूरा ऑर्डर है, किसी भी तालाब को भराटी नहीं होगा। अगर भराटी हुआ तो उसको खोल के पहाड़ और तालाब बांध दिया जाए। तालाब था, तालाब रहेगा। तालाब से बहुत फ़ायदा होता है, आदमी को गुस्ल होता है, लोग कपड़ा पहन धोने जाते हैं। तालाब अब बच गया, सब कुछ तो इन लोगों ने बेच के खा गया। कुछ खास जगह भी बेच दिया और ये भी बैठ गया। अब मैं 2 नंबर ही हो, लीगल अभी लिखना हमारा काम है, हमको जवाब देना होगा। मैं होने नहीं दूंगा, 2 नंबर ही करने नहीं दूंगा। और एमएलए साहब भी बोल दिए हैं कि तालाब था, तालाब रहेगा। तालाब कहने कि नहीं छो कहने देखे तालाब पुकुरे जोला छे, पुकुर देखा जाए ना, कहने पुकुरे तुमरा किनले, कहने पैसा दिले। पुकुर कोनो दिन भराट है? जब तक नहीं चल रहा था, काउंसलर नहीं बोल रहा था आगे का काउंसलर, अब मैं आया हूँ, ये सब होने नहीं दूंगा। और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर जो श्री ममता बनर्जी हैं, उसके ऊपर दाग लगने नहीं दूंगा। ये हमारा कोशिश रहेगा, हमारे पार्टी का कोशिश रहेगा, हमारे वर्कर का कोशिश रहेगा। जो ये महिला ने विरोध किया, किस चीज़ का विरोध कर रही है? विरोध नहीं किया भाई, लोग ऐसा बोला जो हम लोग का मोहल्ला का
2-3 लड़का काम करते हैं, लेकिन लोकल जो लीडर है वो लोग का बुलाता नहीं है। तो मैं तो इतना नीच में ना के नहीं देखता हूँ कौन किसको बुलाता नहीं, लेकिन जिन लोग के बारे में बोला उन लोग को अच्छा होना तो उन लोग को मैंने देखा बहुत पार्टी का मीटिंग में लोग हमेशा शामिल होता है। एक इंडिविजुअल आदमी कोई किसी को नहीं पहचानेगा तो उसका लिए पार्टी तो जिम्मेवारी नहीं है। क्या लगता है आरोप काउंसिलर पे लग रहा है या स्थानीय कोई पॉलिटिकल पर? भाई आरोप लेके আমি যাই না, আমি তো এখানে বিচার করতে আসি নাই, আমি এখানে কাজ করতে এসেছি। পাশে ওখানে রাস্তা ছিল, রাস্তা উন্নয়ন করতে এসেছি। তখন পাড়ার মেয়েরা বললো যারা আমাদের সুখে দুঃখে থাকে সেই ছেলেগুলোকে কেউ মানে যেই হোক ব্যক্তিগত কেউ হয়তো অপছন্দ করে বা পছন্দ করে, তাহলে পার্টির পছন্দ অপছন্দ কোনো ব্যাপার নয়। পার্টিকে মানে সবাই তারা পার্টির সঙ্গেই আছে, পার্টির সঙ্গে আছে। এটা বলছি। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के विक्टर बागची को रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर टीएमसी समर्थकों में काफ़ी खुशी देखी गई। इस खुशी का इजहार करते हुए रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में जश्न मनाया गया। इसके साथ ही एतबारी मोड़ पर ढोल ताशे बजाए गए, पटाखे फोड़े गए और साथ ही एक दूसरे को हरे रंग से रंग दिया गया। इस मौके पर रेहान साकिब, आरजू मुख्तार, संदीप गोराय, रोहित सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर रेहान साकिब ने कहा कि आज रानीगंज ब्लॉक TMYC के नए कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में टीडीबी कॉलेज के पूर्व जनरल सेक्रेटरी TMCP के विक्टर बागची को संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस खुशी में TMCP समर्थक जश्न मना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में TMC और TMC से जुड़े हर शाखा संगठन के समर्थक कार्यकर्ता पदाधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करेंगे। किस लिए मना रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज 31 तारीख को आज हम लोग का तृणमूल का जो कमेटी है, आज अभी 1 घंटा पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ है रानीगंज के कमेटी का, जिसमें हमारे टीडीबी कॉलेज के ex-GS विक्टर बागची एज अ TMYC प्रेसिडेंट, रानीगंज के यूथ तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से चुने गए, निर्वाचित किए गए हैं। इसी खुशी में आज हम लोग टीडीबी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट और छात्र समाज मिलकर इसी खुशी में जश्न मना रहे हैं और आने वाले दिन में रानीगंज में छात्रों और युवा और महिला और मदर सब कांध से कांध मिलाकर एक साथ चलेंगे। इसी खुशी में आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। आपका नाम? अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।